گڈ ایوننگ اور سب کو سلام. میں پوچھنا چاہتی ہوں طارق بھائی جو ڈیوریشن پلیز بتا دیں. 4 بجے 45 minutes. 45 ٹھیک ہے, تو آئی ول ٹرائی ٹو کور ود ان 45 minutes. تو آج کے دن کی آپ کو مبارکباد, کیونکہ بہت سہانا موسم ہے. مجھے پتہ ہے سردی بھی لگ رہی ہے, لیکن خدا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ مبارک ہوتی ہیں ہر صورت میں. اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی وجہ سے بیمار بھی ہوتے ہیں تو اٹس آلسو بلیسنگ, تو اس کو بلیسنگ کی طرح لینا چاہیے. اس لیے جو چہرے تھوڑے سے مرجھائے ہوئے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ مرجھائے ہوئے چہرے جو ہے نا وہ کھل جانے چاہیے, کیونکہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے یہ ساری رحمت ہے, اور یہاں پہ رحمت ہی ہے. ہمارے شہروں میں زحمت ہو جاتی ہے بارش, لیکن ادھر رحمت ہے. چلیں, سو میری طرف سے آپ سب کو ویلکم. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دئی وربم الہی مکاشفہ, اور اس کے نیچے ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے. کوئی اس کو پڑھنا چاہے گا؟ 18 نومبر 1965. 18 نومبر 1965. اس تاریخ کی جو ہسٹری ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے دئی وربم کیا ہے, یا آپ کہیں کہ الہی مکاشفہ کیا ہے. تو شروع کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ سب کے پاس یہ کتاب اس وقت موجود ہے؟ یہ صبح ہی ملی ہے. اب وہ بتائیں جس کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس. آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. زوئے بابا آپ پھر ان کے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور میں دوسری بات پوچھنا چاہتی ہوں, کس کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے؟ اوکے, آپ شیئر کریں. اور کوئی جس کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے؟ مس ماریہ کے پاس ایک ہے, میری والی تو وہ لے سکتے ہیں. اس وقت سب کے پاس ہے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان دونوں کتابوں کی آگے چل کے ہمیں بہت ضرورت پڑے گی. ہم ان کو فالو کریں گے ساتھ ساتھ, تو یہ آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو دئی وربم کیا ہے اور الہی مکاشفہ کیا ہے؟ دئی وربم جو ہے وہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے, اور اس کا بہت ہی خوبصورت سا مطلب ہے جو آپ سارے ایک آواز میں بولیں گے. خدا کا کلام. خدا کا کلام. زبردست. اوکے, یہ ایک اہم دستاویز ہے جو سیکنڈ ویٹیکن کاؤنسل میں پیش کی گئی, اور پوپ پال ششم از دا سکستھ, جو کہ سینٹ بھی ہے, انہوں نے 18 نومبر 1965 کو اس کو منظور کیا. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں سیکنڈ ویٹیکن مجلس کے بارے میں, کہ اس میں دنیا بھر سے تقریباً 2000 کے قریب بشپ صاحبان نے اس میں شرکت کی تھی. کافی ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف ٹھیک ہے. اوکے, تو سیکنڈ ویٹیکن مجلس میں کچھ باتیں جو ہوئی ان میں سے کچھ ایک دو میں بتاتی ہوں. کہ زمانہ بدل رہا تھا, اور اس وقت یہ بات بہت زیادہ غور و فکر میں تھی کہ اب دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے, ماڈرنائز ہو رہی ہے, تو ہم اپنے چرچ کو, تعلیمات کو بھی اسی لیول پہ لے کے جائیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ کلرجی کے ساتھ ساتھ لیڈی کو بھی انوالو کیا جائے. تو یہ کچھ اس طرح کی اہم باتیں تھیں جو اس مجلس میں ڈسکس کی گئی تھی. یہ تصویر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے نا. تقریباً کتنے ہوں گے؟ ویسے تو میں بتا چکی ہوں, تو آپ تقریباً 2000 کے قریب. اور یہ ہے
दई वर्बम द वर्ड ऑफ गॉड जो उसके लिए मुंतखब की गई। अब आप खोलेंगे अपनी किताब और उसका पेज 23 मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप करके 3 हिस्सों में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, लेकिन आपके पास वो एक ही पेज है, पेज 23। तो इसमें डेट्स लिखी हुई है सबसे ऊपर 1962 to 1965। तो इसका मतलब ये कितने सालों में चलती रही? मैथमेटिशियन आज यहाँ बैठे हैं। ओके, अब जो दस्तावेज हैं सारे उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मंशूर। तो आप देख सकते हैं ये 4 है और आप में से कोई भी जल्दी से ये 4 पढ़ जाए, उर्दू वाले। कलीसिया, इलाही मुकाशफा, हालेलुया, दौरे हाज़िर कलीसिया। जबरदस्त। उसके बाद जो फरमान जारी हुए, कोई दूसरा जो इनको पढ़ दे। समाजी मवासलात के ज़राए, इक़्वानियत, बैनुल-अक़वामी, बैनुल-कलीसिया इत्तेहाद, उसाफ़का, रहबाना ज़िंदगी, तरबियत, कैसीसी, काहिनाना तरबियत, आलम-मोमिनीन की रसालत, कसावसा, काहिनों के से मुतालिक और तब्लीग। और थर्ड जो इसका कंटेंट था वो ऐलान, और ये भी 3 है, तो जल्दी से कोई भी इसको पढ़ जाए। मसीही तालीम, दीगर मज़ाहिब के साथ कलीसिया के ताल्लुकात, मज़हबी आज़ादी। मजहबी आज़ादी, ये वो फहरिस्त है जिन पर बात की गई सेकंड वेटिकन मजलिस में। ओके, तो ये दस्तावेज हमें बताती है कि खुदा अपने आप को इंसानों पर कैसे जाहिर करता है, ख़ास तौर पर यीशु मसीह के ज़रिए। पूरी किताब का जो निचोड़ है एक लाइन में वो ये है, जो मकसद है इस इलाही मुकाशफा का वो ये है कि खुदा अपने आप को इंसानों पर जाहिर करना चाहता है और ख़ास तौर पर यीशु मसीह के ज़रिए। ओके, तो इसके जो अहम मौज़ूआत हैं वो 6 अबवाब पर मुश्तमिल है, 6 चैप्टर्स। तो आप अगर अपने पास पेज 3 ओपन करें इस किताब में, पेज 3, आपको यहाँ पे फहरिस्त मिलेगी। सबसे पहले है इंकशाफ, ये खुदा का इंकशाफ है। उसके बाद इलाही इंकशाफ की सलाहियत। ठीक, उसके बाद नंबर 3 ठीक है। ये 3 जो है वो कुछ मैं कहूँगी कि थोड़े से शायद सख्त हो, थोड़े ड्राई हो, लेकिन आप तवज्जो दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपस में जब डिस्कस करें इसके बारे में तो ज़रा आम और आसान ज़ुबान में इसके बारे में बात करें। उसके बाद बाब 4 अहदनामा अतीक। आप सबको पता है अहदनामा अतीक ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, और 5वां बाब नया अहदनामा या फिर न्यू टेस्टामेंट, और 6th जो चैप्टर है इसका बाब शुशम, कलीसिया की ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस। ज़बरदस्त। अब इन चैप्टर्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे साथ साथ, और इन चैप्टर्स की जो भी बाइबल वर्सेस हैं उन वर्सेस को हम इस वक्त पढ़ेंगे, उस पर गौर व खौज भी करेंगे और फिर उसको मैच करेंगे कि वो वर्सेस और किताब में लिखी हुई जो बात है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, और इस किताब में जो जो बातें लिखी गई हैं वो सब कलाम के मुताबिक ही लिखी गई हैं और मंजूर हुई हैं। तो सबसे पहला बाब खुदा का इंकशाफ। मैं चाहती हूँ कोई पढ़े इसको प्लीज़। खुदाए मेहरबान ने सॉरी, स्लाइड आई एम सॉरी। खुदा इंसानों के साथ बात करता है। कैसे बात करता है? वो कायनात, अंबिया, किताबों और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के ज़रिए अपने आप को जाहिर करता है।
ओके, देखिए खुदा इंसानों से कैसे बात करता है। भाई इसमें कितनी चीजें हैं। नंबर 1 कायनात। तो ये जो बारिश हुई है, ये जो मौसम बदला है, तो आपके ख्याल से ये खुदा का एक हमारे साथ कॉन्वर्सेशन का भी तो एक जरिया हो सकता है ना? तो ये कायनात और ये हरियाली और ये बारिश और ये सारी चीजें। दूसरी चीज अंबिया। तीसरी कौन सी किताबें? हमारी बाइबल मुकद्दस। और आप मुझे बता दें कि पूरी बाइबल मुकद्दस में जितनी भी किताबें हैं, मैं नहीं गिनवा रही 66, 73, कोई एक किताब जिसमें खुदा का जिक्र ना हो? कोई है? नहीं। है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो खुदा तमाम किताबों के जरिए हमसे हम कलाम होना चाहता है, बात करना चाहता है। और फिर देखें जोर किस बात पे दिया गया है? सबसे बढ़कर यीशु मसीह के जरिए। ठीक, अब हम निकालेंगे बाइबल मुकद्दस की ये आयत, इफिसियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत। अच्छा, हम एक पैटर्न आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप पेयर में काम करें। पेयर मीन्स 2 लोग। तो जी, तो मैं चाहती हूँ कि एक बाइबल में से हवाले निकालें और दूसरा जो है वो ये जो किताब है आपके पास इलाही मुकाशफा, उसमें से ये जो आयत है उसको हाईलाइट कर दें अपनी किताब में भी और अपने साथी की किताब में भी। तो जल्दी से ज़रा पेयर मुझे बता दें कि पेयर बैठे हैं सब साथ पेयर में? आप साथ हैं? आप दोनों एज अ पेयर? आप दोनों भी एज अ पेयर? ठीक है। जोए एंड इफ्सियों। प्रिया, ठीक है। आपके साथ कोई नहीं, कोमल के साथ? हाँ, नया नाम है। ठीक है, समझ आ गया? आसान है ना? मैं चाह रही हूँ कि आपकी किताब में आप हाईलाइट कर लें कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और फिर उसके साथ ही वो लाइन भी लिखी होगी जो हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये गलती नहीं है। यहाँ पर भी तो इस लाइन में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो या तो 4 हो जाए या 6 हो जाए। इफ्सियों 9 बाब पहली आयत। सहरा आगे 9 बाब। ये फिलिस्तीनियों है। क्योंकि आप लोग भी 3 है ना? 6 बाब तक है मेरे ख्याल में। 1 पहला बाब है और उसकी 9 आयत है। आप भी 3। ये 9 आयत। ये गलती नहीं। आप जल्दी कर लें। ये उठाओ बच्चा। एक मिनट रुको। हो गया? पेयर हो गया? ठीक है, जबरदस्त। अब ये 3 हो गए। पहला बाब 9 बाब। कितनी नाइन अंकल जी तुसी हुण साथ करो ना, वादे कीते। सही, यहाँ पे आई थिंक रिफ्रेश वादों को रिफ्रेश करते रहना चाहिए मिस मारिया के। गलतियों के आगे है। यहाँ पे ओके है। इस तरफ फादर जी अगर आप साथ हैं, आपके साथ है 2 तो ठीक है, ग्रेट। अब जिसने निकालनी है वो पढ़ सकते हैं। जब उसने अपनी मईशत का भेद हम पर जाहिर किया, यानी अपना वो नेक इरादा जो उसने अपने आप में ठहराया था, बस ताकि सिर्फ एक आए 9 आए, ठीक सब फॉलो कर रहे हैं इसको? अच्छा, ये देखें, अब इस किताब में भी वही लिखा है। खुदाए मेहरबान ने अपने आप को अपनी मर्जी से इस भेद को हम पर जाहिर करना चाहा। अब दूसरी इसको भी हाईलाइट कर दो। इफ्सियों उसका दूसरा बाब और 18। इफ्सियों ये 2 बाब है। क्योंकि उसी के वसीले से हम 18 है। एक ही रूह में बाप की गुरबत हासिल करते हैं। बिल्कुल। तो हम दोनों से क्या मुराद हो सकती है? मतलब यीशु मसीह और खुदा। बिल्कुल। तो यीशु मसीह जो है वो इंसान बना, ठीक है।
अब रूह कुदुस जो है वो खुदा की रूह है, और खुदा और यसू और रूह ये तीनों एक ही। देखिए, जिसमें कलमा मुतजस्सिद मसीह की मार्फत, कलमा मुतजस्सिद मसीह की मार्फत, ये जो कलमा मुतजस्सिद है ये यीशु के बारे में बात की जा रही है। इंसान रूह कुदुस में, इंसान यीशु रूह कुदुस में बाप का तकर्रुब हासिल करता। अब यहाँ पे तीनों की बात हो गई ना, तो खुदा अपने आप को यीशु, रूह कुदुस और खुदा तीनों के जरिए हम पर जाहिर कर रहा है, इलाही ज़ात में शरीक होता है। ये खुदा के जाहिर होने की ही बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में से ली गई और इस दस्तावेज में शामिल की गई। नेक्स्ट, यूहन्ना यूहन्ना 15 उसकी 14-15 आया। ये लूका है, यूहन्ना से पहले है। यूहन्ना दूसरा, यूहन्ना इससे आगे, यूहन्ना 15 बाब, लूका के बाद है। यूहन्ना की अंजील 15 बाब जी। तुम मेरे दोस्त हो सही, बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। तुम कर। आगे को मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा। ओके, आगे को मैं तुम्हें क्या नहीं कहूँगा? गुलाम नहीं कहूँगा। लीडर्स जो है वो गुलाम रखता है ना अपने, लेकिन ये लीडर कह रहे हैं कि मैं आपको गुलाम नहीं कहूँगा। आगे बढ़े, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात है। क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा। बस, मैंने तुम्हें क्या कहा है? दोस्त कहा है। आगे बढ़े। क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुम्हें बता दी। तो ये खुदा भी इस तरीके से अपने आप को जाहिर कर रहा है दोस्त के जरिए, और इस किताब में भी यही लिखा है कि इस इंकशाफ के जरिए अपनी मोहब्बत की कसरत से इंसान के साथ गोया दोस्त से हम कलाम होता है और इनके बीच में सकूनत करता है। यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हैं, आपको समझ आ रहा है कि खुदा किस तरीके से अपने आप को जाहिर कर रहा है? कोई बात जो आपको लगता है कि अभी तक ओके है, आगे चल सकते हैं? थैंक यू। हाँ जी, बहुत हमने, क्योंकि बाइबल स्टडी है तो आज आप बस इस पूरे सेशन में आपने बाइबल को इधर से उधर और उधर से इधर पलटना है और पढ़ना है। ये यूहन्ना की अंजील है, पहला बाब उसकी 3री आयत। इसी से सब कुछ पैदा हुआ, ओके, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। किसके बगैर और किससे पैदा हुआ? कलमा से। कलमा से। और इस किताब में ये लिखा है खुदा के कलमे ही से सब कुछ, खुदा कलमे ही से सब कुछ पैदा करता, और अब खुदा के कलमे से जो चीज पैदा हो रही है वो खत्म नहीं हो रही, वो कायम है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, तकवीन 3:15। बिल्कुल सबने निकालिए। मैं तेरे जी और उसके दरमियान इस तरह पढ़े एक टास्क मिला है वो मैं करती हूँ। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा
है? शैतान। अच्छा, कोई और बताए औरत किसको बुलाया गया है? हाँ, माई हवा को नहीं, माई हवा को, हवा को। ऐसे कंफ्यूज करते हैं फिर स्पीकर, इसलिए पूरा ध्यान दिया करें, ठीक है? चले, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। सही कहा भाई ने। यहाँ पर तेरे मीन्स शैतान और औरत मीन्स मुकद्दसा मरियम। तकवीन में ही इस बात का जिक्र है, और तकवीन ही बाइबल की पहली किताब है और दुनिया की बिल्कुल शुरुआत है। तो इसका ये मतलब है कि शुरुआत में ही खुदा ने निजात का मंसूबा बना दिया था। उस वक्त सिर्फ आदम और हवा थे और निजात का मंसूबा बन चुका था। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। और फिर उसके बाद बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। अब शैतान की नस्ल तमाम शैतान, और इस औरत की नस्ल खुदावंद यीशु मसीह, वो तेरे सर को कुचलेगी। माई हवा ने तो तेरी गल सुन ली सी, मान ली सी, खा लिया सी फल, लेकिन वो जड़ी होएगी वो की करेगी? वो तेरे सर को कुचलेगी और तू क्या करेगा? उसके एड़ी का चश्मा खोलने की भी लायक। मतलब हर वक्त चौकन्ना रहेगा, डरा हुआ रहेगा। कभी भी मेरे सर को कुचला जा सकता है, कभी भी मेरे ऊपर कुछ आफत आ सकती है, मुझे खत्म किया जा सकता है। तो तू हर वक्त इस डर में रहे। अब अभी तो बड़े फकर से घूम रहा है, मैं औरत को फाल देता, उन्हें खाता, आदम में देता जी, मेरी वाह हो गई, मेरी मन्नी गई। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा। ओके। तो इसको जो है वो निजात की पहली खुशखबरी भी कहा जाता है, और ये बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले तहरीर की गई है। अब इसके बारे में जो किताब ने लिखा है दई वर्बम में, गुनाह आदम के बाद उसने बचाव का वादा करके निजात की उम्मीद दिलाई। तो हम अगर उस वक्त गुनाह की शुरुआत हुई थी तो खुदा ने उसकी निजात की उम्मीद भी उसी वक्त हमें दिलाई थी। उसी वक्त से वो बिला नागा कंसिस्टेंटली, मतलब कभी ये नहीं हुआ कि खुदा ने उसे राधे को कहा चलो 4-5 महीने छड़ देते हैं, नहीं, उसने कहा बिला नागा, बीच में कोई रुकावट नहीं। आप में से किसी को टीबी के पेशेंट या उसकी मेडिकेशन के बारे में पता है? थोड़ा सा बताएं। 9 महीने कंटिन्यू, और अगर एक डोज फिर से स्टार्ट, अगर एक डोज भी मिस हो गई है, दिन में 3 दफा लेनी होती है, 2 दफा लेनी होती है, एक ही दफा, और अगर एक बीच में नागा हो गया है, 0 से स्टार्ट करना है। तो आप सोचें कि नागा करने का नुकसान कितना है। तो खुदा जो है वो उसी वक्त से बिला नागा नस्ल इंसानी के लिए फिक्रमंद है। और हम क्या कहते हैं? राबू साडू सुनता ही नहीं, कहते हैं ना, we lose our patience। चलिए आगे चलिए। लास्ट नया इतना मेरे इब्रानियों के नाम का पहला बाब 1 और 2 आए। ऐसा लिख देना है इधर। जल्दी से पढ़ें। इसमें अगले ज़माने में खुदा ने, अच्छा, अगले जमाने में से क्या मुराद है? इनके बाद है, फ्यूचर, इसके बाद है। पास्ट, एग्जैक्टली, जो गुजर गया। अगले ज़माने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अम्बिया की मार्फत से कलाम करके इन अय्याम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम इब्रानी किया, उसके बाद में है, जैसे उसने तमाम चीज़ों का था थोड़ी जिसे उसने जिसे उसने तमाम चीज़ों तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया।
और जिसके वसीले से उसने आलम को खल्क किया। बिल्कुल। तो खुदा तकवीन के बाद रुक नहीं गया, वक्त बा वक्त तरह ब तरह अंबिया के ज़रिए वो हमसे इस बारे में बात करता रहा, क्योंकि अपने बेटे यानी अज़ली कलमा को भेजा ताकि तमाम बनी आदम को मुनव्वर करे और आदमियों के दरमियान रहकर खुदा उन्हें गहरी हकीकत से आगाह करे। अब ये जो लिखा है आदमियों के दरमियान रहकर खुदा उन्हें गहरी हकीकत से आगाह करे, तो आदमियों के दरमियान खुदा कैसे रहा? एग्जैक्टली जबरदस्त। ठीक, नेक्स्ट। यूहन्ना आज बहुत सारी आयतें आने वाली, जल्दी जल्दी आपने पलटना है और जल्दी जल्दी यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 9 आयत, और ये बहुत खूबसूरत है, आपने फौरन इसको पढ़ना शुरू कर देना है। 15 बाब 9 आयत। जैसे बाप ने मुझे प्यार वेरी गुड। वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। जी, तो इस मोहब्बत से खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौजूदगी से और अपने आप को जाहिर करने से मुकम्मल तौर पर अपना देता है। मुकाशफा जो है वो भेद की बातें हैं और वो उसको मुकम्मल करता है। दूसरा बाब, इलाही इंकिशाफ की सरायत, उसका क्या असर है हमारी जिंदगी में। तो ये जो अल्फाज हैं ये मैंने किताब से लिए हैं और राइटर के लिखने का अंदाज ये है कि वो तकरीबन 2-3 अब्वाब में मैंने देखा इस चीज़ की रिपीटेशन है, खुदाए करीम शफीक। तो शायद वो इस अकीदत के साथ खुदा को मुखातिब करना चाहता है, शायद उसके दिल में एक एहतराम इतना बड़ा है कि वो ये अल्फाज खुदाए करीम शफीक। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी आई वांटेड टू हाईलाइट के इंतज़ाम से जो कुछ उसने कौमों की निजात के हक में जाहिर किया वो हमेशा पूरे तौर से कायम रहेगा और सब पुश्तों तक पहुंचाया जाएगा। 2000 सालों से और उससे पहले से तो चलता आ रहा है, लेकिन ये कहीं रुकने वाला नहीं, ये आगे हर पुश्त तक जाएगा। जल्दी से खोल ले दूसरा ग्रंथियों 1 बाब 4 है। लास्ट में वही हमारी सबसे हर एक मुसीबत में यूहन्ना हमें तसल्ली देता है, ताकि हम उसी तसल्ली के सबब से जो हमें खुदा से मिलती है उन्हें भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। कितनी खूबसूरत बात है। हमें तसल्ली कहाँ से मिल रही है? खुदा से। और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि हम उनको भी तसल्ली दें जो ना उम्मीद है, जिनको तसल्ली की ज़रूरत है। तो रसूलों को ये काम दिया गया कि तमाम इंसानों को इस अंजील की मुनादी जो हर निजात बख्श सच्चाई, मतलब निजात की जो बातें हैं वो सच्चाई पर मबनी है, वो कोई ऐसी हवा में की हुई बातें नहीं है, और इखलाकी तालीम का सर चश्मा है, और इस तरह इलाही नेमतें उन्हें दिलाई। जल्दी से खोलें दूसरा तसलोनीकियों 2 बाब 15 है। आगे उसके साथ इसी के साथ आगे ये भी बहुत खूबसूरत है, जल्दी से। इस वास्ते ए भाइयों साबित कदम रहो, साबित कदम रहो। आगे चलिए। और उन रवायतों को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के जरिए से तालीम पाई है। जी, तो किताब में जो तहरीर किया गया है इस तरीके से रसूलों की तालीम जो कि खास तौर पर इल्हामी किताबों में, कौन सी किताबों में और किसकी तालीम? रसूलों की तालीम जो कि खास तौर पर इल्हामी किताबों में कैसे लिखी गई है? तफसील से बयान की गई है, ज़माने के अंजाम तक गैर मनक़ता सिलसिले के जरिए कायम रहने को है। नेक्स्ट, लूका की अंजील 2 बाब 2 आयात है। आप लोग भी पेड़ में 2 है, चलो
दो भी काट लो, एक काम, एक 19 काट लेते, एक दूसरी काट लेते। दो बाप पर मरियम इन सब बातों को हिफज कर ले उन पर अपने दिल में दौड़ करती रही। ओके, ठीक है। ये कौन सी बातें हैं? जो फरिश्ते ने उसको और 51 भी पढ़े। उसने तब वो उनके साथ सॉरी, तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। अच्छा, दोनों आयात में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? दूसरी चीज कॉमन क्या है? कौन दिल में रख रहा है बातें? मुकद्दसा मरियम ये बातें अपने दिल में रख रही है। ओके, अच्छा। देखिए, मुकद्दसा मरियम के साथ बहुत सारी बातें, एक तो जब वो प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड था, हैकल में यीशु मसीह का नजर किया जाना, तो उस वक्त शमौन ने कहा था तेरी जान से तलवार। मुकद्दसा मरियम ने ये बात भी अपने दिल में रखी। जब हैकल में गई 12 साल का था यीशु, फिर भी दिल में रखा। उस वक्त भी, अब अगर आप दुनियावी सिचुएशन देखते हैं, माँ बाप परेशान है, बेटा किधर है, कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, अगर मिला भी है तो बेटे ने क्या जवाब दिया आगे से? सिर्फ इसको अपनी दुनियावी सर्कल में ला के देखें, माँ बाप परेशान है और बेटा मिलते ही ये जवाब दे आगे से, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? थप्पड़ मार के बोलेंगे घर चल। थोड़ा से क्यों बोल exactly, थोड़ा सा दुनियावी हिसाब से देखें, लेकिन अब देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। मतलब शायद यीशु ने जब ये बात कही, फिर उसने रियलाइज भी किया होगा कि नहीं कहना चाहिए था, मे बी इट इज रूड, मे बी इट इज नॉट राइट टू से लाइक दिस, तो फिर वो उनके ताबे रहा। हालांकि वो अपने बाप के घर में था, उसने वो भी कोई गलत बात नहीं थी की, यीशु ने तो वही कहा था जो है हकीकत, लेकिन फिर वो उनके ताबे रहा। और ये सारी बातें भी मुकद्दसा मरियम ने अपने दिल में रखी। इसके अलावा देखें, उसके बाद कितना अरसा है जो बाइबल खामोश है, काफी सालों तक फिर बाइबल खामोश है, तो वो सारी बातें भी देखो, बच्चे के बारे में माँ को ज्यादा पता होता है क्योंकि वो उसके साथ रहता है, और बाप ज्यादातर घर से बाहर होते हैं, उनको ज्यादा नहीं पता होता। तो मुकद्दसा मरियम ने ये सारी बातें अपने दिल में रखी। रसूलों के मार्फत पाई हुई रिवायत कलीसिया में तकमील को पहुंचाई जाती है, और अहले ईमान इन बातों को हिफ्ज करके अपने दिल में उन पर गौर और मुताला करते हैं। हाँ जी, जल्दी से तुलसियों, तीसरा बाब उसकी 16 है। जल्दी से तारिक भाई को 50 मिनट के बाद कहना आलू। सी का कलाम ठीक है, मोहताज से रहे, और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो, बिल्कुल, और मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। अपने दिल में गाया करो। हाँ जी, खुदा जो कदीम जमाने में, अब कदीम जमाना, पुराने जमाने में हम कलाम कर चुका इसी कलीसिया के जरिए। कौन सी कलीसिया? ठीक है, और इसको आप अपने आप को भी ले सकते हैं, कदीम जमाना और फिर नया ऐतनामा, और फिर हम भी सच्चाई की तरफ लोगों को ले जाता है जो ईमान लाते हैं और उनमें मसीह का कलाम
फरावानी के साथ बसता है। इस सारे बहुत खूबसूरत बातें हैं। जल्दी से रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी अमाल तो लास्ट में 45 नहीं 42 थैंक यू। और वो रसूलों की तालीम और अखलाक में और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। बिल्कुल। ठीक है, तीसरा बाब इलाही इल्हाम और पाक नविश्ता जात की तफसीर। कोई इसको पढ़ना चाहे प्लीज। जी जी दोनों पढ़ लेंगे। पाक नविश्तों में खुदा की हकीकत और पाकीज़गी, साथ ही दायमी हिकमत की ताज्जुब अंगेज मेहरबानी हर वक्त सालिम रहती है। अच्छा रुके, अब देखें किसकी बात हो रही है? पाक नविश्ते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलाही इल्हाम और पाक नविश्ते। अब पाक नविश्तों में खुदा की हकीकत और पाकीज़गी, साथ ही दायमी हिकमत, ताज्जुब अंगेज मेहरबानी हर वक्त सालिम रहती है, ताकि हम खुदा की वो मेहरबान शफ़क़त जाने जिसे बयान करना नामुमकिन है। तो ये तो हकीकत है कि खुदा की बातों को बयान करना, उसकी शफ़क़त को बयान करना, उसके रहम को बयान करना, उसकी हिकमत को बयान करना हमारे लिए नामुमकिन है। तो ये अब जल्दी से यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 31वीं आयत। रुका के बाद 20 बाब 31वीं आयत जल्दी से। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। ओके, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। अच्छा सोचो ना लिखे गए होते तो हमने कोई नहीं मान लाना, सामने कुछ वाक्य हो रहा तो ईमान नहीं लाते, है ना? इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल-मसीह इब्ने खुदा है, और कोई भी नहीं लेकिन यीशु मसीह ही अल-मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। फायदा फिर भी हमारा ही है। हमारे लिए लिखा गया है कि उसके नाम पर ईमान लाएं और जिंदगी पाएं। अब इस किताब में लिखा है, वो रूह कुदुस के इल्हाम से भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, रूह कुदुस के इल्हाम की हिदायत से कलम बंद कर दी गई है। ये खुदा ही की लिखी हुई किताबें हैं और उसी रूह से कलीसिया को सौंपी गई है। हाँ जी जल्दी से दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब 16-17 आयत। बोरियत हो रही है या मजा आ रहा है कि बाइबल को बार बार खोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं? बड़ी हल्की आवाज में बोला है मजा आ रहा है। अभी हवाला ढूंढ रहे हैं। तमतुस है ना, तमतुस। हर एक नविश्ता जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और नसीहत और तरबियत, कितनी चीजें हो गई? तालीम, इल्ज़ाम, नसीहत और तरबियत। ये 4 चीजों के लिए तरबियत सदाकत के वास्ते फायदेमंद है। जी आगे चलो। ताकि मर्द खुदा कामिल और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जी तो इस बात को तस्लीम करना होगा। अभी ये हमारे लिए एक रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कर लो या ना करो। यहाँ लिखा है इस बात को तस्लीम करना होगा कि कलाम मुकद्दस की किताबें इस्तिक़लाल से और वफादारी के साथ गलत हुए बगैर, मतलब इनमें कोई गलती का चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, गलत हुए बगैर वो सच्चाइयाँ सिखाती हैं जो खुदा ने चाहा कि हमारी निजात के लिए पाक सहीफों में कलमबंद की जाए। तो जो भी बातें हैं वो सब सच हैं और उनमें कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। चलिए ये भी 2 है, आप इसको है दूसरा पतरस
पहला बाब और तीसरा बाब। और हमारे खुदावंद का सफर करना निजात जाने। चनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुवाफिक जो उसे दी गई थी तुम्हें लिखा है, और तमाम खतूत में इन बातों का जिक्र किया है। इनमें बात बातें हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जो जाहिल और बेकयाम हैं वो उनके मायनों को दूसरे रविश्तों की तरह अपनी हलाकत के लिए बिगाड़ते हैं। अच्छा, ये 19-20 की साइड तीसरे बाब की 15 ठीक है, 19-20। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीख जगह में रोशनी बख्शता है। अच्छा, वो चिराग जो तारीख जगह में रोशनी बख्शता है, ये चिराग किसको कहा गया है? कलाम को। तारीख फिर किसको कहा गया है? मतलब अंधेरा, तारीकी, वो किसको कहा गया है? ये हमारे वो हालात है जब हम कहते हैं कि खुदा साड़ी नहीं सुनता, जब हम मायूस हो चुके होते हैं, नाउमीद हो चुके होते हैं, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये वो तारीकी के दिनों में बाइबल मुकद्दस या खुदा का जो कलाम है, ये वो चिराग है जो उस ड्यूरेशन में, जो हमारी अंधेरे वाले जो हमारे दिन है, ये उनमें जो है रोशनी देता है। आगे बढ़े। जब तक वो न फटे, वो ना फटे मतलब हाँ जी वही, लेकिन आप इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं, जब तक सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो, मतलब कि जब तक मुश्किल आसान ना हो जाए। हमारा वो वाला ड्यूरेशन जब तारीकी है, तब तक हम अकेले नहीं हैं, खुदा का कलाम हमारे साथ है। आपने कभी ऐसे जगहों में सफर किया है जहाँ पे टनल्स आते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुरंग। हाँ जी, सुरंग हमेशा के लिए नहीं होती ना, लेकिन वो जितने ड्यूरेशन के लिए होती है, दिल डरता जरूर है। तो उस ड्यूरेशन के लिए आपके पास खुदा है। जिस वक्त अंधेरा है, आखिर तो सुबह आनी है, आखिर तो अंधेरा मिटना ही है, लेकिन ये हमारी हौसला अफजाई के लिए भी आप उसको ले सकते हो कि उस वक्त, जिस वक्त कुछ नहीं है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, उस वक्त खुदा का कलाम है। हाँ जी आगे। और वो फटे, वो ना फटे, और सुबह का सितारा तुम्हारे दिनों में तुलू ना हो। सबसे पहले ये जान करके किसी नबिश्ते की कोई नबूवत शख्सी तफसीर से नहीं होती है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस के इल्हाम से खुदा की तरफ से बोला करते हैं। बिल्कुल, कलाम की जितनी भी बातें हैं वो किसी आदमी की तरफ से नहीं थी, बल्कि खुदा के इल्हाम से हुई है। और इसमें भी यही बात मेंशन की गई है। खुदा पाक फरिश्तों में इंसानों की मार्फत इंसानी तौर तरीके से कलाम करता है। अभी ये जो बात हुई है अंधेरा और फिर सुबह का सितारा, तो ये दुनियावी बातें हैं ना, तो इंसानों के तरीके का कलाम करके हमें समझाना चाहता है खुदा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंपल सी बात ये है, और है ये इल्हाम की बातें, ये अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं की गई। चौथा बाब, अहदनामा अतीक, या आप इसको कह लें पुराना अहदनामा, या आप इसको कह लें ओल्ड टेस्टामेंट। ये देखिए फिर से वही अल्फाज लिखे हुए हैं। निहायत शफीक खुदा ने पूरी नस्ल इंसानी की निजात का दाना मंसूबा बांध कर इसकी तैयारी के तौर पर खास इंतजाम के तहत एक चुनी कौम को अपने वादे के सुपुर्द किया। अहदनामा अतीक के मंसूबे का खास मकसद ये था कि सब के मुखलिस मसीही और मसीही बादशाही की आमद की तैयारी हो। तो इसमें इस बात को जाहिर किया जा रहा है कि पुराने अहदनामे का मकसद जो था वो यसू के आने की तैयारी थी। हाँ जी, तकवीन और खुरूज।
کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک۔ 18 صحیح۔ یہ وہی عہد کی باتیں ہو رہی ہیں جو پرانے عہد نامے میں عہد کیے گئے۔ خروج۔ تب موسیٰ نے خون لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا یہ خون اس عہد کا ہے عہد کا جو خدا نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اگین وہی خدا کا جو کووننٹ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے پہلے ابراہیم سے عہد کیا اور اس کے بعد موسیٰ کی معرفت اسرائیلی قوم سے۔ ہاں جی، یہ رہا 24۔ اشعیا 2 باب 1 سے 4 آیت۔ اب آگے کرتے ہیں، اس کا 15 باب تھا اشعیا، ابھی آگے ہے، نہیں اس سے کیا آگے ہے؟ جلدی سے۔ وہ کلمہ جو اشعیا بن آموز نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا، یہ آپ اشعیا 2 باب کی پہلی آیت سے 4 تک۔ اچھا، میرے پاس کچھ فرق لکھا ہے۔ دیکھیں جو مس ماریہ پڑھ رہی ہیں یہی دوبارہ سے شروع کیجیے گا۔ وہ کلمہ جو اشعیا بن آموز نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر سوار کیا جائے گا اور پہاڑیوں سے بلند کیا جائے گا، اور تمام حکومتیں اس کی طرف روانہ ہوں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف یعنی یعقوب کے خدا کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں سکھائے گا تو ہم اس کے رستوں میں چلیں گے، کیونکہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ ثابت ہوگا۔ بالکل آگے چلیں۔ وہ بہت سی قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی قوموں کا انفصال کرے گا، تو وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر کھالے اور اپنے نیزوں کو درابیاں بنائیں گی، پھر قوم پر قوم تلوار اونچی نہ اٹھائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کی مشق نہ کریں گی۔ یسوع کے آنے کے بعد جو ہے وہ امن و امان۔ اوکے، ارمیا۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا۔ یہ وہی بات ہو گئی، اشعیا میں بھی یروشلم کی بات کی گئی اور ارمیا میں بھی یروشلم کی بات کی گئی، اور ایکچولی میں یہ بات ہو رہی ہے یسوع مسیح کی۔ ہاں جی۔ اور خداوند کے نام سے سب قومیں یروشلم میں اس کی طرف جمع ہوں گی، اور بعد اس کے وہ اپنے شریر دلوں کی ضد پر نہ چلیں گے۔ اس سے آگے پڑھنا بس ختم نہیں آئے۔ یہ دیکھیں، خدا انبیاء کی معرفت خود ان سے ہم کلام ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ اسرائیل انسان کے ساتھ خدا کا برتاؤ محسوس کرتا گیا اور خدا کی راہوں کی روز بروز زیادہ گہری اور صاف سمجھ پاتا اور قوموں میں پھیلتا گیا۔ اوکے، رومیو، خط رومیو کے نام 15 باب اس کی 4 آیت۔ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا، تاکہ ہم صبر سے اور نقشوں کی تسلی سے امید رکھیں۔ کس چیز کی امید رکھیں؟ سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا منصوبہ نجات۔ خدا کے حقیقی کلام کی حیثیت سے عہد نامہ عتیق کی کتابوں میں قلم بند ہوا، اس لیے کہ یہ کتابیں جو کہ الہی الہام کی ہدایت سے لکھی گئی دائمی طور پر قابل قدر رہتی ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو الہام کی ہیں، اور عہد نامہ عتیق میں بار بار ان کی گواہی ہے کہ منصوبہ نجات کے بارے میں بات ہو رہی ہے،
और वो मंसूबा निजात जो तकदीम से शुरू हुआ है वो मुसलसल अभी तक चलता आ रहा है। ठीक हो गया? और मंसूबा निजात में खुदा अपने आप को यीशु मसीह के जरिए जाहिर कर रहा है। जी मत्ती की अंजील 5 बाब उसका 17 है। ये ख्याल मत करो कि मैं तो या साहब अंबिया को मंसूब करने आया हूँ, मंसूब करने नहीं बल्कि पूरा करने। जो मंसूबा निजात चलता आ रहा था मैं ही तो उसको पूरा करने आया। अहदनामा अतीक की किताबें अपने तमाम अज्जा के साथ खुशखबरी के ऐलान के वक्त तकमील तक पहुंचकर अहदनामा जदीद में अपना पूरा मफहूम और मतलब जाहिर करती हैं। तो अतीक की जितनी भी किताबें हैं वो अहदनामा जदीद में आके उसका जो मफहूम है, उसका जो मकसद है, जो मतलब है, जो मंसूबा निजात है, वो अहदनामा जदीद में आके मुकम्मल होने वाला है। और हमारा ये 5वां बाब भी अहदनामा जदीद। खुदा का कलाम जो कि सब ईमान लाने वालों की निजात के लिए खुदा की कुदरत का मंबा है, अहदनामा जदीद की किताबों में निहायत, ये लफ्ज बोले सब, शानदार है, शानदार तरीके से वाज़िया किया गया और अपनी कुव्वत और तासीर जाहिर करता है। ठीक है, चलिए हाँ जी जल्दी से यूहन्ना लूका के बाद है। करें सारे बाइबल के एक दफा खोले ना तो फिर हवाला पढ़ाया करें। ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे जो सबसे आखिर में खोल रहे हैं वो पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 बाब 14। ये ना स्लाइड लाने से पहले ना उनको बोला कि मैं चैप्टर निकालें सारा किताब। चलिए यूहन्ना की अंजील पहला बाब जल्दी से 14वीं आयत। सहर आप पढ़ें। यूहन्ना की अंजील पहला बाब 14वीं आयत। 12, 13, 14। बल्कि जिन्होंने ना पढ़ा वो भी पढ़े जी ठीक है। पढ़ो। और हम सब ने इसको पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। बाप के वही का जलाल फजल और सच्चाई से मांग मिल गया पढ़ ले कोई बात नहीं। तब तक 12वां बाब भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सहर भी पढ़ लें पहला बाब 14। कोई बात नहीं, गलती इज एक्सेप्टेबल। मुतजस्सद और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। बिल्कुल, ये पहले बाब के बारे में और ये 12वें बाब के बारे में। रसूलों के उसका पहला बाब और 1 से 1 और 2 आयत। ए ताफलिस मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा। कोई बता सकता है कि ये राइटर जो है वो पहली किताब किसका जिक्र कर रहा है? लूका की अंजील। अब इसमें लिखा है खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूल अपने सुनने वालों को बता रहे हैं कि मसीह ने क्या क्या कहा और क्या क्या दिखाया था। ये आसान है, हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और छठे बाब पे आते हैं। कलीसिया की जिंदगी में कलाम मुकद्दस। मेरे पास कितना टाइम है? मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ग्रुपिंग अगर हम ये 10 मिनट है
10 मिनट टाइम तो ओवर हो गया है। ठीक है, चलें। ये चैप्टर पढ़ा दें बस, इसकी भी एक्टिविटीज देना चाह रहे इसमें दे दें। मैं अच्छा ठीक है, चलें। तो अब यहाँ पे देखें, कलीसिया हमेशा इलाही नविश्ता जात की वैसी ही इज्जत करती है, ये कंपैरिजन की बात हो रही है, जैसा कि खुदावंद के बदन की करती है। दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इलाही नविश्ता जात और खुदावंद यीशु मसीह का बदन, मतलब वो नविश्ते भी वही वैल्यू रखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का बदन। वो हमेशा कलाम मुकद्दस को पाक रवायत के साथ ईमान का आला तरीन कायदा समझती रही और हमेशा समझती रहेगी। ठीक है, रसूलों के अमाल उसका 20 बाब 32वीं आयत। पढ़े जी। और अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम से सपोर्ट करता हूँ जो तुम्हें कामिल बनाने और तमाम मुकद्दसीन के दरमियान मिरास देने की कुदरत रखता है। 32 है। ठीक है, इसके बारे में जो एक बात है, अच्छा इसको कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करें। खुदा का कलाम इस काबिल है कि कामिल बनाए, तो आपके ख्याल से कामिल बनाना क्या हो सकता है? मुकम्मल कर दो बिना किसी नुक्स के। सही। और किस तरीके से कामिल बनाना? ईमान के हमारी आंखें, हमारे दोनों हाथ, 2 हाथ हो, आंखें हो, 2 टांगे हो, मुकम्मल हो इंसान, इस तरीके से। किस तरीके से? ईमान जी। मैम अगर हम तकवीन में पढ़ें तो खुदा ने कायनात जैसे बनाई थी, हर एक चीज़ जो बनाई गई थी उसको बनाने के बाद कहा गया कि अच्छा है। फिर नाफरमानी हुई, फिर निजात का मंसूबा भी हमने सीखा। इसी को जब हम मुकाशवा में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो जब हम मसीह में दाखिल हो जाते हैं तो फिर वही सिचुएशन में बताता है, वो काबिलियत मुकम्मल हो जाता है। Yes. तकदीर से लेके मुकाशवा तक। ये आपने बाइबल के हिसाब से बताया। मैं आपको जी मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताती हूँ। कामिल होना मतलब जो हमारे अंदर रूहानी कमी, हमारे रवैये के हिसाब से जो कमी है, ये हमें कलाम जो है ये हमें उस तरीके से मदद करता है कि हम कामिल बने, उन कमियों को, बुराइयों को अपने अंदर से जितना कम कर सकते हैं करें और अच्छाई की तरफ आए। हाँ जी, पहला तस्सलुनीकियों उसका 2 बाब 13वीं आयत। इस वास्ते हम बिला नादा खुदा से शुक्रगुजारी करते हैं। 2 बाब 13 2 बाब उसकी 13वीं आयत। खतूत को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो पढ़े सबको मिल गए। हाँ जी पढ़े। मगर है भाइयों, ए खुदा के प्यारो, वाजिब है। अच्छा, इस वास्ते हम बिला नागा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते हैं तुम्हें मिला, तो तुमने उसे आदमी का कलाम नहीं बल्कि जैसा दर हकीकत है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। मतलब ये नहीं कहा कि ये उस शख्स ने कलाम किया था। जब खुदा का कलाम है तो उसको कबूल भी किया और रेफरेंस भी वही दी कि ये खुदा का कलाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और वो तुम में जो ईमान लाए तासीर भी कर रहा है।
ठीक है, दूसरा तसलोनीकियों तीसरा बाब उसकी 1 आयत। गर्ज है भाइयों, हमारे लिए ये दुआ करो कि खुदावन का कलाम जल्द फैल जाए। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पौलुस रसूल की ख्वाहिश है कि खुदा का कलाम जो है ना वो जल्द फैले। जितनी उसके दिल में मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए, यीशु के लिए, उसकी जो है वो शफकत के लिए थी, वो चाहता था कि जल्द फैले आगे और ऐसा जलाल पाए जैसा तुम में है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मेरा ख्याल, हाँ जी, इसमें से कोई एक देख ले, दोनों में एक ही बात लिखी है। इशाया 40:8 या फिर पहला पतरस 1 बाब उसकी 24 और 25 आयत। क्योंकि हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी हशमत घास के फूल की मानित है। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है। बस इसके आगे मेन बात लिखी हुई है। अब अक्सर जो है वो इशाया या जो अंबिया है वो इस तरह की मिसालें देते हैं, दुनियावी मिसालें देते हैं। घास की मिसाल दी गई है, फूल की मिसाल दी गई है। घास उगती है, फूल खिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन एक दिन घास सूख जाती है और फूल भी मुरझा जाता है। अब इसके आगे जो बात लिखी है वो सबसे खूबसूरत है। मगर खुदावन का कलाम अब तक बाकी रहता है। खुदावन का कलाम जो है वो अब तक बाकी रहता है, ना उसने घास की तरह सूखना है और ना ही फूल की तरह उसने मुरझाना है। और इसमें भी यही बात लिखी हुई है। हाँ जी, ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। ये वो कलाम है जिसकी वही बात होगी शुरू से जो खुशखबरी तकवीन से चलती आ रही है, मंसूबा निजात, और ये उसी की बात होगी। ये लास्ट पैराग्राफ है, बिल्कुल इट इज ऑन पेज 22, आपकी किताबों में है, आप उसको देख सकते हैं। ये भी आपकी किताब में पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है। और ये एक आखिरी एक मुझे पिक्चर मिली थी तो मैं चाह रही थी कि ये मैं इसको, ये सब जरा पढ़े। सबसे ऊपर पैसा चलाना जाएगा, पैसा दूसरा, चला जाएगा, घर पुराना हो जाएगा, तीसरा, खूबसूरत चेहरा वक्त के साथ मिट जाएगा, फायदा नहीं होना, लास्ट वन, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा कायम रहेगा।